Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Best student friends, okay, today we will see our next chapter, that's name is triangles. Okay, so before starting that I will ask some basic questions. Okay, so you have to know all the types of angles. Okay, so there are major three types of angles are there. Okay, which are there? So generally क्या होता है कि अपने पापा के नाम के बाद में हम जनरली क्या यूज करते हैं? राव यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? राव. उसकी स्पेलिंग क्या होती है? RAO. क्या होती है? RAO. ओके, सो वही हमें यूज करना है. R stand for what? Right angle. A stand for acute angle. O stand for obtuse angle. Okay, so according to that we have to move to the our chapter whose name is what? Triangles. Okay, so you have to know some basic concepts regarding the triangles. Okay, triangles क्या होता है, एक्चुअली उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज रहेंगे, उसके ऊपर के थ्योरम्स है, ये ऑल द थिंग्स इंक्लूडेड इज देयर. ओके, 8 स्टैंडर्ड है या 9 स्टैंडर्ड है या 10 स्टैंडर्ड है, हम जनरली फोकस कर रहे हैं 8 स्टैंडर्ड का स्कॉलरशिप का सिलेबस. ओके, सो लुक एट हियर. सो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज मीन बाय ट्रायंगल. सो रिगार्डिंग दैट the definition is the closed figure which is having three sides, three angles, three vertices. It is known as what? Triangle. It is known as what? Triangle. जो जिनमें तीन sides होती है, ठीक है, तीन angles होते हैं और तीन vertices होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? ट्रायंगल कहा जाता है. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ टाइप्स है ट्रायंगल्स के. ठीक है, तो कितने टाइप्स है? देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. How many types? 6 types. Okay, तो उनका भी क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन किया गया है, कैटेगरी वाइज क्या किया है, उनका ग्रुपिंग किया है. ग्रुपिंग कैसे? तीन टाइप जो है वो है साइड्स के बेस पर. किसके बेस पर? साइड्स. और जो तीन रिमेनिंग जो भी टाइप्स है वो बेस है एंगल के बेस पर. ठीक है, सो हम देखेंगे. फर्स्टली लुक एट हियर, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर. According to sides, means based on sides, there are 3 types. Okay, so which are they? First one is isosceles triangle. What is meant by isosceles triangle? Means in that triangle, any two sides are congruent or equal. Okay, that are known as what? Isosceles triangle. After that, look at here. Second type is scalar triangle. What is that? Scalar triangle means all the 3 sides are different. All the 3 sides are different, यानी कि तीनों भी साइड क्या है? डिफरेंट है. ठीक है. आफ्टर दैट वन मोर इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम ही हमें बताता है. लैटरल मींस क्या होता है बेटा? साइड्स होता है. लैटरल मींस व्हाट? साइड्स. और इक्विलैटरल मतलब उनका कॉम्बिनेशन बनके वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इक्वल साइड्स वाला ट्रायंगल. उसके तीनों भी साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. ठीक है, ये रहा जनरल फॉर्मेट. अभी इसको लर्न कैसे करना वो भी ट्रिक बताऊंगा. ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 6 टाइप्स. ओके, बेस्ड ऑन साइड्स देयर आर 3 टाइप्स. उसको कैसे लर्न करोगे? उसको बोलना है एक वर्ड इसे. बोलो इसे. ISE. उसकी स्पेलिंग क्या रहेगी? ISE. I stand for isosceles triangle, S stand for scalar triangle, E stand for equilateral triangle. ये हो गए 3 types of triangles based on sides. Okay, लाइक दैट जैसे साइड पर 3 टाइप हो गए, वैसे ही
एंगल के बेस पर 3 टाइप्स है, देखेंगे हम। सो जनरली जैसे मैंने अभी कहा था कि कुछ कुछ बच्चों के पापा के नाम के आगे क्या यूज करते हैं हम, राव, जैसे प्रकाश राव, गंगाधर राव, राम राव, ऐसे रहता है। और राव का स्पेलिंग क्या लिखते हैं जनरली, RAO, क्या लिखते हैं, RAO। तो वही हमें यूज करना है। सो बेस्ड ऑन एंगल्स देयर आर 3 टाइप्स व्हिच आर दे RAO, जैसे कहा था मैंने, ठीक है। R स्टैंड फॉर व्हाट, राइट ट्रायंगल, मींस one angle is of 90 degree. So obviously remaining 2 angles are of acute angle, means एक अगर 90 डिग्री रहा तो ऑब्वियसली ट्रायंगल के अदर जो भी एंगल्स रहेंगे वो लेस देन 90 डिग्री रहेंगे, क्योंकि वी आर नोइंग दैट सो सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। सो वही देखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप हुज नेम इज व्हाट, राइट ट्रायंगल। सेकंड है देखो एक्यूट ट्रायंगल, मतलब इसके तीनों भी एंगल्स क्या रहेंगे, एक्यूट रहेंगे, लेस देन 90 डिग्री। एक्चुअली क्या होता है जनरली, उसका डेफिनेशन हम डायरेक्टली बोलते हैं लेस देन 90 डिग्री, बट दैट इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन। डेफिनेशन इज दैट ऑफ एक्यूट एंगल इज greater than 0 degree but less than 90 degree, means that angle should be between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। बिटवीन ये शब्द का अर्थ होता है उन दोनों को छोड़ के, उन दोनों के बीच में आने वाले, ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने बच्चों, क्योंकि स्कॉलरशिप के एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिटवीन, फ्रॉम, टू, ये कंसेप्ट थोड़े से चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। सो हमें क्या ध्यान रखना है, बिटवीन का मतलब क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या, ठीक है। सो लाइक दैट अभी एक्यूट एंगल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, कि ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ओके। सो दैट टाइप इज नोन एज व्हाट, एक्यूट ट्रायंगल, ओके। इनके तीनों भी एंगल क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेंगे, ठीक है। वही हमें देखना है। और लास्ट जो भी थर्ड टाइप है वो है ऑप्टिक्स ट्रायंगल। वो क्या है, ऑप्टिक्स ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, एक जो एंगल है वो क्या रहेगा, ऑप्टिक्स रहेगा। ऑप्टिक्स मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री वाले एंगल को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, इट इज नोन एज व्हाट, ऑप्टिक्स एंगल। और वही यहाँ पे कंसेप्ट है कि वो यहाँ पे जो एक एंगल रहेगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा बट लेस देन 180 डिग्री रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल और डायरेक्टली ऑप्टिक्स ट्रायंगल। इसमें ऑब्वियसली एक एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, रिमेनिंग 2 एंगल्स क्या रहेंगे, लेस देन 90 डिग्री। सो दैट कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम बच्चों कि ट्रायंगल लेसन, ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रिकैप, ठीक है। फर्स्ट दैट्स व्हाई वी हैव टू नो द कांसेप्ट ऑफ एंगल्स। एंगल्स के सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जो भी थ्योरम्स रिगार्डिंग ट्रायंगल है बच्चों, तो रिगार्डिंग दैट पैरेलल लाइंस वाला जो चैप्टर एंड वो जो एंगल्स का, उस पर बहुत बेस्ड है। वो अगर आपका परफेक्ट रहा तो ये सारी चीजें आपको इजी लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे आपको आगे चल के पता भी चलेगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे। ओके, जैसे कहा था मैंने कि हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रिकैप की तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक चीजें हमें जान के लेने होंगे, क्योंकि दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा भी चीज रहा पढ़ने का, तो उसका स्टार्टिंग से अगर हमें नॉलेज रहा तो ही हमें आगे चल के क्या होता है, वो अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी कि बेस जो होता है वो पहले मजबूत करना होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बेसिक नॉलेज, ओके। सो देखो, एक चैप्टर आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, कौन सा था, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ओके। सो आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मींस क्या होता है, या फिर डेफिनेशन क्या है, द टू लाइंस व्हिच नेवर, मींस द लाइंस व्हिच नेवर मीट ईच अदर। या फिर टू लिखा है, लेकिन कौन सी भी, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मे बी अलॉट। तो उसका डेफिनेशन क्या हो गया, द लाइंस व्हिच नेवर मीट ईच अदर दे आर नोन एज पैरेलल लाइंस। जैसे आप एग्जांपल देखोगे, रेल की पटरी है, ठीक है, रेल की, ठीक है, रेलवे लाइन, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, पैरेलल लाइंस। और रिगार्डिंग दैट
ये जो फिगर देख रहे होगे आप, यहाँ पे आपको दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? दो पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल। Which are that the two parallel lines are there? Line here, line M. That two lines are parallel. Parallel का सिंबल कैसे जनरली ये से खड़े जो दो लाइन होते हैं बड़े बड़े, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसको रीड कैसे क्या करेंगे बच्चों? L line there parallel to line M. Okay. So यहाँ पे जो line M है, M that is the transversal. That is what? Transversal. So अभी देखो दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, इससे हमें क्या होता है? एक 8 एंगल्स मिल जाते हैं। हमने एंगल्स वी आर गेटिंग 8 एंगल्स। ओके, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, सो लुक एट हियर। यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि जैसे फिगर यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है, यही हम फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट और एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर के। यहाँ पे देखो ये जो साइड रहेगा बच्चों, ये जो दो लाइन के बीच में का जो भी कहा जाएगा उस पोर्शन को, उसको कहा जाएगा इंटीरियर। और जो बाहर का रहेगा ये दो लाइन का, उसको क्या कहेंगे हम? एक्सटीरियर कहेंगे। तो उनके पेयर बनते हैं बेटा। कितने पेयर बनते हैं? दो पेयर बनते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से कितने पेयर्स? दो पेयर्स। कौन से? 1 7, ठीक है, एंड 2 8। ठीक है, तो जैसे zigzag लाइन बोलते हैं ना, Z टाइप, तो ऐसे स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसे आपने फिगर को अच्छे से देखा तो आपको Z टाइप का आपको ये जो फिगर है ऐसे दिखाई देगा, राइट? सो लाइक दैट, उसको हम जस्ट टेक्निक को उसको लर्न करने की क्या रहेगी? Z टाइप ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 8, ये दो क्या हो जाएंगे बेटा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और जो दोनों भी एंगल्स है ना, वो रहेंगे सेम। वो रहेंगे क्या? सेम रहेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और दैट आर इक्वल। वैसे और एक पेयर मिलती है एक्सटीरियर एंगल्स की, कौन सी है वो? एंगल नंबर 2। यहाँ पे यहाँ वाला जो एंगल और यहाँ वाला एंगल नंबर 8, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। दैट मींस कॉन्ग्रुएंट। ये जो सिंबल है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है मींस कॉन्ग्रुएंट मींस व्हाट? दे आर इक्वल। बोथ थिंग्स लाइक इक्वल, दैट टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, आफ्टर दैट देखो जैसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की पेयर मिल गई हमें, तो अभी क्या रहेंगी? वैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर रहेंगी। कौन सी पेयर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। वो कौन से एंगल है फिर? तो लुक एट हियर। जैसे अभी कहा था मैंने कि एक्सटीरियर एंगल बोलने के बाद ये जो दो लाइन का आउटर एरिया जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? एक्सटीरियर एंगल का। और जो दो लाइन का बीच में का एरिया, ठीक है, वो क्या रहेगा? इंटीरियर ऑब्वियसली। सो लुक एट हियर, इंटीरियर एंगल का अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जो मैंने जैसे कहा था कि Z टाइप स्ट्रक्चर होना चाहिए अल्टरनेट का, तो वो लाइक दैट। लुक एट हियर, सो ये दिस एंगल 4 और ये एंगल 6, ये दो एंगल्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे और एक पेयर मिल जाएंगे हमें। दिस टू एंगल्स आर इक्वल। जैसे प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मींस व्हाट? इक्वल। ये जो सिंबल मैंने मेंशन किया है, दिस बिलोंग्स टू व्हाट? कॉन्ग्रुएंट। ओके, आफ्टर दैट लुक एट हियर, और एक पेयर मिलेंगे हमें। कौन सी वाली? दिस एंगल नंबर 3 एंड दिस एंगल नंबर 5। ये भी पेयर क्या होंगी? ऑलमोस्टली कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, लाइक दैट। अभी आफ्टर दैट क्या और क्या मिलेंगे हमें? पेयर्स करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स लुक एट हियर, ये जो एंगल नंबर 1 दिखाई दे रहा है, एंगल नंबर 5, ये जस्ट एक आपको सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे याद रखनी है। ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है, बोलो मेरे साथ, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। ठीक है, लुक एट हियर। यहाँ पे देखो, ये जो अगर आप पोर्शन देखोगे, ये दो लाइन पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है, ये ऊपर का एरिया देखो एंगल नंबर 1, और यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे जो भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ऊपर कौन सा है? ये साइड में कौन सा है? 5। तो ये एंगल 5 एंड एंगल 1 या ये क्या रहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे। क्या रहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और प्रॉपर्टी हमें पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मींस दे आर इक्वल। ओके, लाइक दैट। और एक पे ये साइड का, एक साइड का देख लेंगे, बाद में इस साइड में आ जाएंगे। ये साइड में करस्पॉन्डिंग का हमने क्या कौन से देखे? एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 5, मतलब ऊपर ऊपर। ठीक है, ऊपर ऊपर। अभी बाद में क्या रहेगा? नीचे नीचे। तो नीचे क्या है? एंगल 4
और नीचे क्या है यहाँ पे एंगल है, ये पोर्शन में ये साइड में नीचे क्या कौन सा एंगल है, एंगल 4 है, और ये साइड में कौन सा एंगल नीचे एंगल 8 है, तो एंगल 4 एंड 8 वो भी क्या रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो क्या रहेंगे, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट मींस नॉट इक्वल। आफ्टर दैट ये हो गया ये साइड का, अभी क्या जाएंगे ये वाली साइड, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप तो एंगल अभी ऊपर जैसे कहा था मैंने, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 6, these two angles will be congruent, okay. After that जो एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 7 नीचे वाले, that two angles will be equal or that congruent, okay. ये हो गए सारी कंसेप्ट, मतलब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखे हमने, बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखे, बाद में क्या देखे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा VOA, क्या दिखाई दे रहा होगा VOA, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, दैट उसका एब्रिविएशन यानी कि लॉन्ग फॉर्म होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और कौन से यहाँ पे फिगर में देखोगे, ठीक है। तो एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 3 ये वाला, ये दोनों क्या रहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे इसका वर्टिसेस समझो उनके अपोजिट, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आल्सो आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पे कौन सी पेयर मिलेंगे हमें मिलेगी 4 पेयर मिलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, और रिमेनिंग जो भी रहेंगे उसके जो अगर आप देखोगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, उनके हमें कितने पेयर्स मिलेंगे, 2 पेयर्स मिलेंगे। अभी आप बात कर रहे हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, उनके हमें मिलेंगे 4 पेयर्स। कितने पेयर्स मिलेंगे, 4 पेयर्स, ओके। क्योंकि डियर तो वर्टिकली अपोजिट के हम देखेंगे, जैसे क्या कहा था मैंने कि ये एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3, ये 2 एंगल क्या रहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दे आर इक्वल, व्हाट दे आर इक्वल, लाइक दैट सेम। सो look at here, angle number 2 and this angle number 4, that two angles will be same according to our that condition or whatever that property means, angle number 2 and angle number 4, that two angles are vertically opposite angles, that two angles are also vertically opposite angles। ये हो गया ऊपर की साइड का, ठीक है। अभी जाएंगे हम डाउन साइड में देखो एंगल नंबर 5 एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 8, ये क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो अभी लास्ट कांसेप्ट देखेंगे ये वीडियो का, कौन सा है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, एक रहता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि 2 एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 2 एंगल का एडिशन 180 डिग्री, उसको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ये अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो उसका भी ट्रिक बताता हूं मैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री तो देखो सी, जैसे हम डिक्शनरी रहता है हमारा, ठीक है, उसमें सी पहले आता है, यस लेटर से पहले, तो वैसे ही हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर टाइप लेना है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब छोटा वाला मतलब 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री मतलब बड़ा वाला मतलब 180 डिग्री। बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री के बारे में, तो वही आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी जो डिक्शनरी होती है इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें लेटर कौन सा पहले आता है सी, वैसे छोटा वाला एंगल कौन सा आएगा 90 डिग्री, वही आपको याद रखना है। मतलब 90 डिग्री मतलब जो जब 2 एंगल्स का एडिशन 90 डिग्री रहेगा, उनको क्या कह सकते हैं हम, दैट 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर वही एडिशन 180 डिग्री होती है तो उनको क्या कहते हैं कि दे आर सप्लीमेंट्री। सो फिगर में आप देखोगे, ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री हमें दिखाई दे रहा है। तो कौन से रहेंगे को इंटीरियर एंगल, लोग लिया तो एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6, ये साइड का अगर आप देखोगे तो एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6, इन दोनों एंगल्स का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। लाइक दैट ये एंगल 4 एंड एंगल 5, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। मींस हम इस कंक्लूजन पर जा सकते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 6 they are supplementary from this side, and they are from this side angle 4 and angle 5 are supplementary, okay। तो जैसे कि बेसिक चीजें हमने देख ली, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जस्ट एक बार रिवीजन करके ले लो, और आगे चल के हम ट्रायंगल्स के चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।